Good morning, class 6 student. Welcome back in your science session, chapter number 7, the living and the non-living. Student, you all already know that what are living and what are non-living. This topic is nothing new for you. But in this chapter, we will read about other activities of living and non-living. How they are similar, how they are different from each other. Then what are the characteristic features of living things? So let us proceed with the chapter. Open a book at page number 103. 103. Things around us. हमारे आसपास की चीजें. Presence of life on Earth is a unique attribute of the planet. We all see variety of living organisms around us. ये भी आपको पता है, हमने आसपास देखे तो बहुत सारे variety of organisms हमें दिखते हैं. These organisms not only interact among themselves but also with the surrounding environment. EV topics याद होगा environment. हमारा आसपास का environment के साथ interaction रहता है, चाहे वो animal हो, चाहे man, human beings हो, interact करते हैं environment से. The environment consists several non-living components. Environment में बहुत सारी non-living things भी हैं, non-living चीजें भी हैं. Thus we can say that the world around us made up of both living and non-living. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. We see variety of things around us. Dog, plant, you, your teacher, birds are the example of living beings. Fan, window, your house, and cycle are the example of non-living things. ये आपको पता है क्या? Dog, cat, ये एनिमल जो है, even I and you, we are living. Then table, chair, things around which cannot breathe, which cannot move, they are non-living. So all living things live for such a period of time. This period is known as their lifespan. जितने भी living things हैं, कुछ समय के लिए जीते हैं, कुछ जिस भी टाइम के लिए, जिस भी पीरियड के लिए ये लिविंग कंडीशन में रहेंगे, that time period is called lifespan. ये इनका जीवन काल कहलाएगा, जिसे lifespan बोला जाता है. Living organisms are born. They grow, change their shape and size and finally die. Living being born होते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, इनकी शेप में, साइज में चेंजेस होते हैं और फाइनली दे डाई. उसके बाद ये चले भी जाते हैं. सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग. लेकिन कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं लिविंग और नॉन लिविंग में जो अब देखते हैं हम क्या है. हाउ वुड यू क्लासिफाई समथिंग एज अ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हम कैसे बताएंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. Despite the obvious difference between the living beings and the non-living things, there are few similarities between them. कुछ अगर दोनों में difference है, तो उनमें कुछ similarities भी हैं. For example, both living beings and non-living beings are made up of matter. दोनों ही matter के बने हुए हैं. And you know, student, what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Matter वो है जो जगह घेरता है और इसमें वजन होता है. तो we are also matter. We are made up of matter. They both occupy space and has mass. चाहे living हो चाहे non living हो, दोनों में ही mass होता है और वो जगह भी घेरते हैं. Both are made up of small structural unit. दोनों ही छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं. This cannot be seen with the unaided eye. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. तभी हम हमारी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे हम मिलके बने हैं या नॉन लिविंग थिंग्स मिलके बनी हुई हैं देख पाते हैं. To see them, different type of microscope are used. Difference between living and the non-living things. अगर स्टूडेंट में ऐसे आपको रिलेट करने को बोलूं तो बहुत सारे मुझे डिफरेंस बता सकते हो. Living beings exhibit certain unique character which are different from non-living things. Some of these features are growth. इसमें सबसे पहला है growth. Living thing growth शो करेगी, non-living thing में कोई ग्रोथ नहीं होगी. Nutrition, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. Non-living thing do not need any nutrition. मूवमेंट, हम लोग मूवमेंट शो करते हैं, इधर उधर चलते हैं, फिरते हैं, हाथ हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं. ये सारे मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में होंगे, लेकिन नॉन लिविंग की बॉडी में ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं देखी जाती. रिप्रोडक्शन भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एक्सक्रीशन भी हमारा है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं अब कि लिविंग बीइंग के पास ही होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस सम डिस्टिंक्टिव फीचर. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले है हमारी बनावट, structural organization. Then growth. Third is movement. Fourth, food nutrition. Fifth, respiration. Sixth, excretion. Seventh, reproduction. Eighth, ninth,
Student here 8th is not given, mistaken by the book. 9th is given. 8th is definite lifespan and 9th is response to stimuli. यहाँ पे बुक में नंबरिंग रॉन्ग है स्टूडेंट. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट. योर हाउस इज मेड अप ऑफ वॉल. हमारा घर दीवारों से मिलकर बना है. बट ये दीवारें किससे बनी है? ये बनी है ब्रिक्स से, ईंटों से. और जो ईंटें हैं, ब्रिक है, दैट इज अ व्हाट इज दैट? दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर हाउस. स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे तो ब्रिक ही हमारे घर का सबसे छोटा हिस्सा है. सिमिलरली लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल. उसी तरह से जो लिविंग बींग्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. तो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है लिविंग बींग की, वो होती है सेल. दीज सेल डिवाइड फर्दर टू फॉर्म न्यू सेल्स. जब ये सेल आगे ग्रोथ कर रहे होते हैं तो ये डिवाइड होते जाते हैं. डिवाइड होते होते ये इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं. सो इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और a structural unit of all living organism. याद रखना स्टूडेंट, सेल इज अ लिविंग और यू कैन से स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल द फंक्शन नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ टेक प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जितने भी फंक्शन है वो पॉसिबल है, वो होते हैं यहाँ पर. दैट इज वाई सेल इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसलिए सेल को सबसे पहले बेसिक फंक्शन यूनिट कहा जाता है. Based on the number of cell, organism can be either unicellular or multicellular. सेल के आधार पर कैटेगराइज करें अगर ऑर्गेनिज्म को तो 2 पार्ट में करा जाता है. एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, जिसमें एक ही सेल हो. एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के जो एग्जाम्पल इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एल्गी. ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ more than 2 cells are known as unicellular, multicellular. जो बहुत सारे सेल से, 2 से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर ज्यादा हो गया अगर तो वो मल्टीसेलुलर में काउंट हो जाएगा. और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल होते हैं प्लांट, एंड्स, डॉग, ह्यूमन एंड एलिफेंट्स. बिगर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लार्जर द नंबर ऑफ सेल्स. जितना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ही ज्यादा उसमें सेल्स होंगे. For example, a dog has more cell in its body than a frog, while an elephant has more cell in the body than comparison to human beings. Comparison देख सकते हो आप. डॉग की बॉडी में सेल, नंबर ऑफ सेल मल्टीसेलुलर ही है, दोनों ही. फ्रॉग भी मल्टीसेलुलर है, डॉग भी मल्टीसेलुलर है. लेकिन डॉग जो है वो बड़ा क्रीचर है देन फ्रॉग, उसकी बॉडी में ऑब्वियसली सेल ज्यादा होंगे. हम एलिफेंट से छोटे ह्यूमन बीइंग, तो हमारी बॉडी में एलिफेंट से कम नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है. देन कम विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ. आस्क योर पेरेंट्स टू शो योर फोटोग्राफ फॉर द टाइम व्हेन यू वर एन इन्फेंट. जब आप छोटे काल में फोटोग्राफ देखोगे तो आप अपनी बॉडी के चेंजेस और उस इन्फेंट जब आप छोटे थे तब उस बॉडी में चेंज देख सकते हो. व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रोथ. अब जब आप ग्रो हो गए, इंक्रीज हो गए साइज में, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो गया, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम. तो स्टूडेंट हियर ऑन पेज नंबर 105 डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ इज गिवन. ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. व्हेन सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड देयर नंबर इंक्रीज. अभी पढ़ा हमने इससे पहले ही कि जब सेल डिवाइड होंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे और ये रिजल्ट कहाँ करेंगे? ग्रोथ में रिजल्ट करेंगे. पपी बिकम डॉग, किटन ग्रो इनटू कैट. ये कॉमन एग्जांपल है, अपने आसपास देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट. पेज नंबर 186. एनिमल स्टॉप ग्रोइंग इन साइज आफ्टर सम टाइम. लेकिन कुछ एक टाइम आता है जब उसके बाद एनिमल ग्रो करना बंद कर देते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर बॉडी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. अब इस समय इनकी बॉडी जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस से जा रही होती है. दैट मेक देयर बॉडी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैच्योर. अब बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई और मैच्योर हो गई. नाउ प्लांट हाउएवर कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं. इन लिविंग थिंग ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल डिवीजन. याद रखना ये लाइन भी बहुत वैल्यूबल है. दैट लिविंग थिंग जो है वो ग्रोथ का रिजल्ट है. लेकिन ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? ग्रोथ होती है इंटरनल डिवीजन. जब सेल जो है वो साइज में बढ़ जाए, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल. सेल के साइज बढ़ते चले जाए, सेल्स बढ़ते चले जाए, डिवीजन होता चला जाए. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट डू. लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा सेल डिवीजन होगा ही नहीं. देयर साइज और वॉल्यूम इंक्रीज ओनली समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन उनकी बॉडी तभी बढ़ेगी जब कुछ बाहर से एडिशनल ऐड कर दिया गया, कुछ साथ में अटैच कर दिया गया.
फॉर एग्जाम्पल स्टैक ऑफ कॉइन डज नॉट ग्रो। अगर आपने बहुत सारे कॉइन एक साथ रख दिए, सालों तक वैसे ही पड़े रहेंगे, जब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक आप उसमें और कॉइन यानी सिक्के लाके और ऊपर नहीं रख दोगे, ज्वाइन नहीं कर दोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। टॉय यू प्ले विद व्हेन यू आर स्मॉल, दे आर द स्मॉल टिल टुडे। जो आप बचपन में खिलौने से खेलते थे वो आज भी छोटे ही हैं, उतने ही हैं, वो आपकी एज के साथ साथ नहीं बढ़े, हमारी ग्रोथ की तरह उनकी ग्रोथ नहीं हुई। दिस इज बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट। मूवमेंट इज अ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है, जो मुख्य फीचर है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट कुड बी एक्सटर्नल मूवमेंट और एन इंटरनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ब्लड इनसाइड द बॉडी। मूवमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। हमारी बॉडी में ब्लड जब इंटरनली मूव करता है तो इंटरनल मूवमेंट है, एंड दिस मूवमेंट मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बदले, यानी एक किसी भी प्राणी या जीव की पोजीशन में चेंज हो। ब्लड हमारी बॉडी में रन कर रहा है। एनिमल एक्सिबिट लोकोमोशन। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। दैट इज वाई दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसी वजह से एनिमल या लिविंग थिंग कह सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। कैसे, क्यों करते हैं हम अपने इधर लोकोमोशन क्यों शो करते हैं एनिमल? लोकोमोशन इसलिए शो करता है, या तो वो फूड के लिए शो करेगा, शेल्टर गया अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट डू शो इंटरनल मूवमेंट। प्लांट मूव नहीं करते लेकिन उनकी बॉडी में इंटरनल मूवमेंट शो होता है। इन एडिशन टू इंटरनल मूवमेंट प्लांट एग्जिबिट सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट। साथ में कुछ एक्सटर्नल मूवमेंट भी देखा जाता है। सनफ्लावर इसका एग्जांपल है, अपने आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिमोसा पुडिका, जिसे आप टच मी नॉट बोलते हो, छू मिल का पौधा, इसमें जब आप जैसे लीफ को टच करोगे लीफ जो है ड्रूप हो जाएगी, अपने आप को बंद कर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एक्सटर्नल मूवमेंट शो कर रही है। ऐसे ही आप देखते हो कि जब वो कौन सा फ्लावर होता है, सनफ्लावर, वो अपने को क्या करता है, सन की डायरेक्शन में रखता है, तो ये भी मूवमेंट शो कर रहा है। नाइट होगी तो झुक जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे मूवमेंट ही शो नहीं करता। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए स्टूडेंट्स, आपको वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसा एग्जाम्पल है। जैसे इंसेक्ट बैठेगा वो अपना मूवमेंट शो करेगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक विल बी फूड एंड न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट, we will meet in the next lecture, food and nutrition. Thank you students.